बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 What triggered the initial wave of Gen Z-led protests in Nepal? A. Increase in taxes. B. A social media ban. C. Fuel price hike. D. Military conscription. प्रश्न 1। नेपाल में जेन जेड नेतृत्व वाले विरोधों की शुरुआत किस कारण हुई? ए. कर में वृद्धि। बी. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। सी. ईंधन मूल्य वृद्धि। डी. सैन्य भर्ती। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी ए सोशल मीडिया बैन, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। The immediate trigger was the ban on 26 social media platforms including Facebook, Instagram, WhatsApp, and X. The government claimed these platforms had failed to register locally as required under new regulations. However, for Nepal's Gen Z population aged 15 to 30, social media is not just entertainment but also a medium of communication, activism, and employment influences online business, etc. The ban was seen as censorship, suppression of free speech, and isolation of Nepal from the digital world. This explains why students and young professionals mobilized in large numbers. व्याख्या। इस विरोध की सीधी वजह थी सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाना, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स शामिल थे। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां स्थानीय पंजीकरण कानूनों का पालन नहीं कर रही थीं। लेकिन नेपाल के जेन जेड युवाओं 15-30 आयु वर्ग के लिए सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि संवाद, रोजगार, इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन व्यापार और सक्रियता का मंच है। इस प्रतिबंध को सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और डिजिटल दुनिया से नेपाल को अलग करने की कोशिश के रूप में देखा गया। इसलिए युवाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर दिया। Q2 What was the ultimate outcome of the protests regarding the social media ban? A. Ban extended further. B. Ban partially lifted. C. Ban fully lifted. D. Platforms penalized. प्रश्न 2। विरोधों का परिणाम सोशल मीडिया प्रतिबंध के संदर्भ में क्या रहा? A. प्रतिबंध और बढ़ाया गया। B. प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाया गया। C. प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया गया। D. प्लेटफॉर्म्स पर जुर्माना लगाया गया। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर सी बैन फुली लिफ्टेड, प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया गया। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। The government initially tried to justify the ban, but the violent protests and international pressure forced it to roll back the decision. Communications Minister Prithvi Sabagurung announced that the ban was revoked and services like Facebook, Instagram, and YouTube were restored. This outcome shows the power of public mobilization in Nepal, where youth protests have historically influenced political changes, e.g., 2006 Jana Andolan. The rollback also signaled the government's recognition that digital freedom is essential for stability in today's world. व्याख्या। शुरुआत में सरकार ने प्रतिबंध को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन हिंसक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उसे निर्णय वापस लेना पड़ा। सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुर ने घोषणा की कि प्रतिबंध हटा दिया गया है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सेवाएं पुनः शुरू कर दी गई हैं। ये परिणाम दर्शाता है कि नेपाल में जन आंदोलन की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। पहले भी जैसे 2006 का जन आंदोलन, युवाओं की सक्रियता ने बड़े राजनीतिक परिवर्तन किए थे। साथ ही सरकार ने यह भी समझा कि आज के दौर में डिजिटल स्वतंत्रता अनिवार्य है। Q3 What was the reported death toll during these protests? A. 5 people. B. 10 people. C. 19 people. D. 30 people. प्रश्न 3। इन विरोधों में रिपोर्टेड मौतों की संख्या क्या थी? A. 5 लोग। B. 10 लोग। C. 19 लोग। D. 30 लोग। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर C. 19 people, 19 लोग। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. The protests turned violent in several parts of Nepal, especially in Kathmandu. Security forces used tear gas, baton charges, and in some cases, live ammunition to disperse crowds. According to reports, 19 people were killed and over 100 injured. This high death toll has drawn criticism from human rights groups and raised questions about the government's excessive use of force. The tragic loss of life has also deepened the anger of protesters, transforming the issue from a social media ban into a larger fight against authoritarianism. व्याख्या। नेपाल के कई हिस्सों, खासकर काठमांडू में विरोध हिंसक हो गए। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और कुछ जगहों पर सीधी गोलीबारी का इस्तेमाल किया। रिपोर्टों के अनुसार 19 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक घायल हुए। इतनी बड़ी संख्या में मौतों ने मानवाधिकार संगठनों को भी चिंतित किया और सरकार पर अधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया और यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध तक सीमित न रहकर सत्तावाद के खिलाफ लड़ाई बन गया। Q4 Which Nepali city was most affected by the curfew and clashes during the protests? A. Pokhara.
बी काठमांडू, सी विराटनगर, डी जनकपुर। प्रश्न 4, विरोध प्रदर्शनों के दौरान किस नेपाली शहर में कर्फ्यू और झड़पों का सबसे अधिक असर पड़ा? ए पोखरा, बी काठमांडू, सी विराटनगर, डी जनकपुर। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी काठमांडू। काठमांडू। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। Kathmandu, the capital city, became the epicenter of the unrest. Most major government buildings, universities, and media houses are located here, making it the natural hub for protests. Violent clashes around Singha Darbar, the government secretariat, and other central areas forced authorities to declare a curfew in several parts of the city. Although smaller protests spread to towns like Pokhara and Biratnagar, Kathmandu remained the symbol of resistance and state repression. व्याख्या। नेपाल की राजधानी काठमांडू इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बनी। यहाँ अधिकतर सरकारी दफ्तर, विश्वविद्यालय और मीडिया संस्थान हैं, इसलिए यह विरोध का स्वाभाविक स्थल बन गया। सिंह दरबार, सरकारी सचिवालय और अन्य इलाकों में हिंसक झड़पें हुईं, जिसके कारण कई जगहों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। यद्यपि पोखरा और विराटनगर जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हुए, लेकिन काठमांडू इस आंदोलन का विरोध और दमन दोनों का प्रतीक बन गया। Q5. Which of the following occurred amid the protests? Escalation. A. Airport shutdown and flight diversions. B. Tax relief for youth. C. Government reshuffle announced. D. New media law enacted. प्रश्न 5, जब विरोध बढ़े तब निम्नलिखित में से क्या हुआ? ए. हवाई अड्डा बंद और उड़ानों का मार्ग परिवर्तन। बी. युवाओं के लिए कर राहत। सी. सरकार में फेरबदल की घोषणा। डी. नया मीडिया कानून लागू। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर एयरपोर्ट शटडाउन एंड फ्लाइट डाइवर्शंस, हवाई अड्डा बंद और उड़ानों का मार्ग परिवर्तन। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। As protests intensified in Kathmandu, Tribhuvan International Airport was shut down temporarily. Flights from airlines such as Indigo, FlyDubai, and Thai Lion Air could not land and were diverted to nearby Indian cities like Delhi and Lucknow. The incident highlighted how political instability in Nepal can quickly impact regional connectivity and tourism, which is vital for its economy. It also reminded observers of Nepal's fragile political environment, where unrest can disrupt essential infrastructure. व्याख्या। काठमांडू में विरोध बढ़ने पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इंडिगो, फ्लाईदुबई और थाईलान एयर जैसी एयरलाइंस की उड़ानें उतर नहीं सकीं और उन्हें दिल्ली और लखनऊ जैसे भारतीय शहरों की ओर मोड़ दिया गया। ये घटना दर्शाती है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता कितनी जल्दी क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन पर असर डाल सकती है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी दिखाता है कि नेपाल का राजनीतिक वातावरण कितना नाजुक है, जहां अशांति तुरंत बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं, बस 5-5 जीके सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।